चलो Thank you. All the staff members are requested to stand here for the floral tribute. Please give a round of applause. All the staff members are requested to come up on the stage for the floral tribute. बटन मध्ये खरं दरवान इथे Thank you, everyone. Live as you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. With this quote, a very enthusiastic morning to all the gathering present over here. Today, I, Sukanya Mahajan, from 3rd SEM, is here to welcome you all on this auspicious day for the celebration of Gandhi Jayanti and to welcome our worthy principal, Professor Hansraj ji. I, Sukanya Mahajan, on behalf of the entire faculty, welcome you wholeheartedly, sir. Professor Hansraj, sir, has served different colleges of Jammu from past 33 years. The motto of a worthy principal is to render his tremendous services for the college to reach at the next level. We welcome you, sir, with a round of applause. Now, I would like to express my sincere thanks to Professor P.K. Amla, sir. Under your guidance, we have learned so many good things. Thank you so much, sir, for giving your selfless services from past 3 months as a principal. And special thanks to NSS convener, Mrs.
Scott, ma'am, she has been a strong backbone for our college and for the student committee. Please give a round of applause for them. My heartfelt gratitude for the faculty and non-faculty staff for giving their support during this pandemic time. Thank you everyone. Thank you staff of the BDC. Please give a round of applause for the staff members. Now I would request every student to get up and please give a clap. I want every student to get up and give a loud applause for our teachers. Mahatma Gandhi, by name of Mohandas Karamchand Gandhi, on 2nd October 1869 in Porbandar, India. He was an Indian lawyer, well-known politician and a writer who became a leader of nationalistic movement against the British rule of India. We all are gathered here today to celebrate Gandhi Jayanti. Now I would like to invite Sita Kumari to come up on the stage and throw some lights on today's topic. नमस्कार। आया था एक नन्हा सा बालक 2 अक्टूबर को इस दुनिया में, नन्हे नन्हे हाथों में एक स्वतंत्र भारत का सौगात लिए। 13 वर्ष की अवस्था में इनका कस्तूरबा से ब्याह हुआ और आगे की शिक्षा के लिए इनका विदेशों को गमन हुआ। धीरे धीरे फिर इनको अपने ही देश में दमन हुआ। बहुत हुआ अब अत्याचार, अंग्रेजों को होने वाली अब कठिनाई थी। साधारण सा था वो बालक, पर इसने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। अहिंसा था जिसका हथियार और सत्य को जिसने अपना राह चुना। लोग प्यार से इन्हें बाबू बुलाते और महात्मा की उपाधि भी इन्होंने ही कमाई थी। एक व्यक्तित्व थे असाधारण से, दुबली पतली सी जिनकी काया थी, पर वह हिम्मत ही थी इनकी जिसने हमें आजादी दिलाई थी। महान पुरुष थे वो उस दौर के और वो हर युग में कहलाएंगे। जब जब दुस्साहस करेगा दुश्मन तो हम भी इतिहास दोहराएंगे। वो मोहनदास करमचंद गांधी थे जो सदैव राष्ट्रीय पिता कहलाए, जो उल्लास के साथ मनाएंगे। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के इस अवसर पर मुझे इस बात की काफी प्रसन्नता है कि मुझे आप सबके समक्ष हमारे आदर्श महात्मा गांधी जी को लेकर अपने विचारों को प्रस्तुत करने का मौका मिला। कभी ना कभी आपके मन में भी ये विचार आता होगा कि आखिर क्यों महात्मा गांधी जी को हमारे देश का आदर्श माना जाता है। विश्व भर में कई लोग उन्हें शांति और अहिंसा का रूप बनाते हैं। हमें रोज कई ऐसी घटनाएं सुनाते हैं जिसमें भारतीय छात्र और लोग अपना देश छोड़कर विदेशों में बस जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति को भूले जाते हैं। लेकिन गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जो कई विदेश यात्राओं के बाद भी अपने देश को और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने देश वापस लौटे तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए निवस भाव से संघर्ष किया। गांधी जी भारत स्वयं समक्ष और हमें दूसरों के विचारों तथा संस्कृति को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण था कि उन्होंने देशवासियों से अंग्रेजी वेशभूषा का त्याग करने और भारतीय मिलों में बने खादी के कपड़ों को पहनने के लिए कहा। इसके साथ गांधी जी ने देश के लोगों से आग्रह किया कि वे खुद नमक बनाएं और अंग्रेजी हुकूमत के नमक कानून का पालन ना करें। अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा का शुरुआत की
उनके सर्वमान्य नेता थे। इन्हीं विरोधों के चलते विवश होकर अंग्रेजों की नमक कानून वापस लेना। गांधी जी का हर कार्य प्रशंसनीय। उन्हीं की बदौलत महिलाएं पुरुषों के संग हर क्षेत्र में कांधे से कांधा मिलाकर काम कर रही हैं। गांधी जी के सिद्धांत सिर्फ हम तक या हमारे देश तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि मार्टिन लूथर किंग जैसे लोगों ने भी रंग भेद की नीति के खिलाफ उनके अहिंसा के विचारों को अपनाया। हमें सदैव उनका आभार। लोग अपने आप को उनके ओर आकर्षित होने से रोक नहीं पाए। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और भारत को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए समर्पित कर दिया। हम गांधी जी के सहनशीलता और अहिंसा मार्ग से अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि हम इन्हें अपने जीवन में अपना लें तो संसार से ना जाने कितनी ही समस्याओं का अंत हो जाएगा। गांधी जी ने न सिर्फ देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि छुआछूत, जाति प्रथा तथा लिंग भेद जैसी सामाजिक कुरीतियों के मुख से ईश्वर का ही नाम निकला। उनकी महानता का वर्णन कुछ शब्दों में करना काफी मुश्किल है। उनका जीवन न सिर्फ हमारे बल्कि अनेक आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। उनके विचार और त्याग सिर्फ हम ही नहीं अपितु पूरा विश्व को ये बताने का कार्य करते हैं कि हमारे बाबू कितने विनम्र और सहनशील थे और हमारे लिए उनसे अच्छा आदर्श शायद ही कोई हो सकता है। मैं आखिर में उनके लिए 2 लाइन कहूँगी। देश के लिए अपने प्राणों तक को कुर्बान किया, देश के लिए अपने प्राणों तक को कुर्बान किया। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हर धर्म का सम्मान किया। धन्यवाद। Thank you so much, Geeta ji. Now I request Sukanya Mahajan to share some thoughts about Gandhi ji. Thank you. The sign of a good leader is not how many followers you have, but how many leaders you create. Yes, my dear friends, these lines are truly said by the famous personality Mahatma Gandhi. With this quote, a very cheerful morning to one and all present over here. Today I, Sukanya Mahajan, welcome you all for this special day celebration of Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is celebrated every year on October 2nd to honor the legendary leader Mahatma Gandhi, without whom India would not have been free from the clutches of Britishers. His non-violence way united millions of people to follow the path of ahimsa and protect against the evil obsession. Mahatma Gandhi left behind the legacy to inspire people and unify with thoughts of brotherhood in arms. On 2nd October has been declared as national holiday for the tribute of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi never praised himself. To speak about Gandhi alone would like be against his wishes. I want to re-quote his thought. खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। With this I end up my speech. आज के दिन मैं ये कहना चाहूँगी, जिस बंदे ने भी, जिस इंसान ने भी अहिंसा का रास्ता चुना है, वह सफलता ही पाई है। All the youth should follow the legacy of Mahatma Gandhi. I end up my speech and address the audience that hope my speech will value your life. Thank you and have a cheerful day ahead. Thank you, Sukanya. Please big round of applause for her. Now I request Hari to express their views about Gandhi Jayanti. Please welcome. Greetings to everyone gathered here on the occasion of Gandhi Ji. I, Harish, heartily welcome you to celebrate
this momentous day along with us. On 2nd October, every year, India celebrates a national holiday in remembrance and honor of the birth of Mohandas Karamchand Gandhi, who is also famously referred to as Mahatma Gandhi, was given the title of Father of Nation by Netaji Subhash Chandra Bose for his relentless struggles for our independence. Mohandas Karamchand Gandhi was born in Porbandar, Gujarat on October 2, 1869. In British India to merchant class family. He was 24 when he first left India to pursue law in South Africa, and where for the first time he encountered inequality due to his race and was thrown out of the train because he did not resemble his white co-passengers. When he returned to India, he practiced law and he was obliged to see the injustice around him, and deep sense of doing injustice was triggered. He always fought for what is right and participated in many non-violent civil rights movements and lead many campaigns like Dandi March, which is also called Salt March in 1930 to protest against the illegally imposed salt tax. As this basic amenity was already freely available to us due to our coastal function where thousands of people followed Gandhi to Arabian Sea from his religious return in Ahmedabad. Today, as we go about our lives, let's remember and honor to philosophy by treating people with respect and equality without any prejudice and not come from the violence even at any worst. Let's lead a life in peace by following the path of non-violence. Jai Hind. Thank you, Harish. Now I would like to invite Tishka Sharma. Please big round of applause for them. गली गली वैसे कांपी थी, गांव शहर सहमे थे, अंग्रेजी जल्लादों के सांसों तक पर पहरे थे। 200 वर्षों तक हमने गोरों की करी गुलामी थी, पर तुमने जब अलग चलाई गोरी नस्लें कांपी थी। बिन हथियार लड़े हो फिर भी हार गया शैतान, हे बापू तुमको मेरा शत शत प्रणाम। प्रिय परम आदरणीय महोदय जी, प्रिय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं तितिक्षा जीडीसी कुंजवानी की छात्रा आप सबके समक्ष उस महापुरुष की बात करने जा रही हूँ जिसने 20वीं शताब्दी में पूरे संसार को इस बात से परिचित करा दिया कि शस्त्रों की विजय ही सच्ची विजय नहीं होती, जबकि अहिंसा, सत्यता, धर्म जैसे पवित्र मार्गों पर चलकर भी सच्ची विजय पाई जा सकती है। इसके कई उदाहरण हमें इतिहास में भी मिलते हैं, जैसे भारत के सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में हुई खून रक्तपात से प्रभावित होकर सदा के लिए राजगद्दी को छोड़कर बौद्ध धर्म का अनुयायी कर पूरे संसार को अहिंसा, धर्म, शांति का पाठ पढ़ाया था। उस संसार को पाठ पढ़ाया था। उसी तरह महात्मा गांधी ने भी भारत की आज़ादी के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। इसीलिए तो कहा जाता है, दे दी आज़ादी हमें बिना खड़क बिना डाल, दे दी आज़ादी हमें बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं उस महापुरुष की बात कर रही हूँ जिसकी विचारधारा को केवल भारत में ही नहीं देश विदेश में भी माना जाता है, जिनकी विचारधारा पर चलकर ही नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बने, उन्होंने ही साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलवाई थी। मैं और भी कई ऐसे प्रसिद्ध चेहरों की बात करूंगी, जैसे कि बराक ओबामा, मार्टिन लूथर किंग, स्टीव जॉब्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके ही मार्ग पर चलकर इतनी दूर तक पहुंच चुके हैं। मैं उस महान व्यक्ति की बात कर रही हूँ जिसे किसी महात्मा से कम नहीं कहा गया, जिसने लगभग 11 बार अपनी बेगुनाही के लिए जेल जाना पड़ा, जो एक दिन में लगभग 18 किलोमीटर चलता था, जिसने अंग्रेजों को कई बार हारने तक पर मजबूर कर दिया। उस व्यक्ति को किसी नाम से
से पुकारने के लिए डिक्शनरी में शब्द भी कम पड़ जाएंगे। मैं उनकी कही गई बात को दोहराऊंगी। If I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it, even if I may not have it at the beginning. जरा उनके बचपन की ओर चलते हैं। इस महान आत्मा का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के गुजरात के छोटे से गांव पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी था, जो पोरबंदर जिले के दीवान थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में ही हुई। इनके पिता ने 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह 14 वर्ष की कस्तूरबा बाई से करवा दिया। इन्होंने 21 वर्ष की आयु में ही लॉ की परीक्षा पास करके बैरिस्टर का स्थान भी प्राप्त कर लिया और इसके बाद उन्हें एक मुकदमे के लिए साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि कुछ दिन बाद उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी जिंदगी को ही बदल कर रख देगा। 7 जून की रात वे गलतीवश ट्रेन की फर्स्ट क्लास यानी गोरों की बैठने वाली सीट पर जाकर बैठ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि सांवले रंग के कारण गोरों ने बेइज्जती के बाद उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया। और उसी समय गांधी जी ने ये विचार कर लिया, यदि ये शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है तो डर किसका और किस लिए। और इसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में नक्सलीय भेदभाव यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेदभाव यानी कलर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कई आंदोलन चलाए। इस तरह उनकी प्रसिद्धि भारत में बढ़ती ही चली गई। जब वे 1915 में भारत लौटे तो उनका स्वागत बहुत ही जोर शोर से किया गया। इसके बाद उन्होंने सत्याग्रह अभियान, अंग्रेजों की गलत पॉलिसीज पर बहुत से आंदोलन चलाए, जिसका प्रभाव ये हुआ कि भारत की एकजुटता को देखकर अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा और हमारा प्यारा भारत स्वतंत्र हो गया। मैं यहाँ उस महान सोच की बात कर रही हूँ जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है। जिस व्यक्ति ने स्वच्छ भारत का सपना देखा, जो आत्मनिर्भर भारत को देखना चाहता था, जो अहिंसा, परमो धर्म जैसे भाव लेकर चलता था, जो हर जाति धर्म को एकजुट देखना चाहता था, जो हिंदी को अति प्रिय समझता था, जो चरखा खादी को बढ़ावा देना चाहता था। मैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात कर रही हूँ जो स्वदेशी का नारा देता था। पर लेकिन आज का कड़वा सच ये है कि हमारी युवा पीढ़ी इस महान सिद्धांतों को भूलकर इसके विपरीत कार्य करना ज्यादा पसंद करती है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, गाली गलौज ये भारत में तो सामान्य बात सी हो गई है। स्वच्छता में तो भारत ने ऐसा मुकाम हासिल किया इस बार कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180 देशों में से 169वां रैंक हासिल किया। जाति धर्म की भेदभाव की कहानियां तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुन रहे हैं। मैं एक बात अपने युवा दोस्तों को संबोधित करते हुए कहूंगी कि हमें भारत के विकास के लिए गांधी जी के इन सपनों को पूरा करने की ओर अग्रसर होना ही होगा। अब मैं अपनी वाणी पर विराम देते कुछ पंक्तियां कहूंगी। अब बापू के सपनों को फिर से सजाना है, बापू के सपनों को फिर से सजाना है। बहुत गालियां हमने आजादी के गानों को, बहुत गालियां हमने आजादी के गानों को, अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है। जय हिंद। Now I request Mandeep Kaur to please address the audience. Good morning, everyone. It's with great pride and honor I want to say a few words about the father of our nation, Mohandas Karamchand Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi was born on October 2, 1869 at Porbandar, Gujarat. He was the son of the Chief Minister of Porbandar, Karamchand Gandhi, and his mother was Putli Bai. He was raised in a very religious background, and that was the reason from the beginning itself he was taught about the importance of self-discipline and non-violence. At the age of 19, Gandhiji left his home to study law in London.
Time passed and in 1891 he started his law practice in Bombay court. As he found the success, he was approached to represent an Indian firm in South Africa with his wife Kasturba Bai and his children. He lived in South Africa for almost 20 years. So, you may be thinking what resulted in him fighting for the independence of the country. While he staying in South Africa, he had to face a lot of discrimination. Once Gandhiji was on the train journey, where he was beaten and thrown out of the first class compartment by a white driver, and he refused to give up his seat to a European passenger. The incident is considered to be a turning point in Gandhiji's life as it resulted in himself reflecting upon the situation of how Indians are treated in society. Essentially, Gandhiji started teaching everyone the concept of truth and firmness or satyagraha. He believed that passive resistance was the only way to fight against violence, discrimination and injustice everyone faces, and through passive resistance only can freedom be achieved. In July 1914, after spending almost 20 years in South Africa, Gandhiji returned to India in 1919. Gandhi launched an organized campaign of passive resistance against the Rowlatt Act. He had to withdraw his campaign against Rowlatt Act after witnessing the massacre of 400 Britishers led Indian soldiers. And by 1919, he was the most visible leader in the movement for Indian independence. After many attempts, which include numerous fast and non-violent protests against British rule, India was finally granted independence by British in 1947. By split country into two colonials, India and Pakistan, Gandhiji was against this. This is a war which divided the country, but finally agreed upon thinking the Hindus and Muslims would achieve peace intentionally after partition. On January 30, 1948, Gandhiji was on his way back from an evening prayer in New Delhi when he was shot dead by Nathuram Godse. He was a Hindu fantastic who was serious about the fact that Gandhiji was against the partition and was negotiation on cancelling it. The next day, millions mourned and he was cremated on the banks of the holy Jamuna river. To conclude this speech, I wanna say that Mahatma Gandhiji's life is an open book through which many things could be learned. His passive resistance, approach to solving life, and the way he was always in a state of self-discipline, if implemented by everyone, could lead to success. He loved each and every one of us. He kept many fasts as there were roads due to partition in 1947, and he tried his best to stop the partition, but in the end, he shot dead by Nathuram Godse. It is very sad to see that to this day people are fighting in the country in the name of religion. If we love and respect him and all the freedom fighters who fought to achieve independence in our country, we should be Indian first and stop violence against Indian religions. Thank you so much. Thank you, Gandhi. Now I request Sita Kumari to come upon the stage to recite her poem. एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके सामने गांधी जी पे एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गीत तुम्हारे गाते गाते हम तुमको ही भूल गए। गीत तुम्हारे गाते गाते हम तुमको ही भूल गए। तुमने जीवन को पहचाना, हम ना तुम्हें पहचान सके। तुमने मर गए दुनिया जीती, हम कब तुमको जान सके। जाती है सब और तुम्हारी किरने पर हम भरमाए। देव तुम्हारे पुष्पों को हम अब तक खोज नहीं पाए। याद हमें जयनाथ तुम्हारा, पर हम
तुमको भूल गए, गीत तुम्हारे गाते गाते हम तुमको ही भूल गए। आज तुम्हारे आदर्शों की छाया भी अवशेष नहीं, आज तुम्हारे आदर्शों की छाया भी अवशेष नहीं। भरी नदी में जैसे गति को धड़कन का आवेश नहीं, मरणशील इतिहास बन गई आज तुम्हारी कुर्बानी। क्षण भर को भी तुमने तुम जैसे की लाज नहीं मानी। शपथ तुम्हारी खाते खाते हम तुमको ही भूल गए, गीत तुम्हारे गाते गाते हम तुमको ही भूल गए। मंद नहीं होते बदन के स्वर, तुम तो भगवान बने। मंद नहीं होते बदन के स्वर, तुम तो भगवान बने। हम पर पीड़ा में शोषण में और बड़े प्रमाण बने। पूजा का पार्षद बनाकर हमने तुमको रखा छोड़। मंदिर में अनगिनत पत्थर थे, एक अधिक उनमें जोड़। मंदिर में ठहराया तुमको, हम पापों में झूल गए। गीत तुम्हारे गाते गाते हम तुमको ही भूल गए। गीत तुम्हारे गाते गाते हम तुमको ही भूल गए। धन्यवाद। Now I request Janmeet Kaur to come on the stage. Please big round of applause for her. गाने वाले का बाहर जब मैं सोचूं गाने वाला आने वाला तब कोई वो बताओ क्या है। नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम यहाँ गांधी जयंती के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। तो मैं जनमीत कौर जीडीसी कुंजवानी की छात्रा इसी विषय में चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी। राष्ट्रपिता जो कहे जाते हैं, प्यार से बापू उन्हें बुलाते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने विलास को छोड़कर अपना जीवन देश की आज़ादी में लगाया। विदेशी कपड़ों को त्याग कर उन्होंने देशी का महत्व समझाया। कई आंदोलन और सत्याग्रह किए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए लोगों को साथ किया, देश को आज़ाद किया। सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई, अपना तन मन सब कुछ सौंप दिया, अपने आप को पूरा झोंक दिया। अंत तक लड़ी लड़ाई, देश को आज़ादी दिलाई। धोती वाले बापू की ये ऐसी एक लड़ाई थी, न गोले बरसाए उसमें, न बंदूकें चलाई थी। बिन हथियार लड़े वो, फिर भी हार गए शैतान। हे बापू तुम्हें मेरा प्रणाम, हे बापू तुम्हें मेरा प्रणाम। Thank you, Janmeet. Every function is incomplete without a sweet song. Now I request to invite Ranjit Singh. Please give round of applause for him. ओ माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे बापू आजा रे। बोले हम राहे हमको राह दिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। सैनिक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम आंखें थर थर सुनकर उनका नाम रे। वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम। कथा उनका छोटा सा और सरपटी उनकी चाल रे। दुबले से पतले से थे वो चलते सीना कान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बाई बाई का दुश्मन है बना रे, नफरत की आंधी बहती रे। वैसी दिलों को अब प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम। झूठ का बढ़ता जाए राज वो बापू, अपने होंगे धोखेबाज। आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू आजा रे। पाई पाई
महंगाई में इंसान बेकारे, जान जे होगी सस्ती रे। सोया ज़मीर बापू फिर से जगा दे, आजा रे बापू आजा रे। वंदे मातरम, माटी पुकारे तुझे देश पुकारे, आजा रे बापू आजा रे। बढ़ के हम राहे हमें राह दिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। थैंक यू। Now I request our worthy principal to come up on the stage to address the audience. सबसे पहले मेरी तरफ से सभी स्टाफ मेंबर्स और जो मैडम और एनसीसी और स्पोर्ट्स के बच्चे जो यहाँ पर गांधी जयंती का उत्सव जन्मतिथि मना रहे हैं, उसकी हार्दिक बधाई है। आज के ज़माने में जो दौर चल रहा है, हम अपने देश की सुरक्षा के लिए कितना कुछ बनाए बैठे हैं। एटम बम वगैरह की तैयारी की हुई है, F-16 फाइटर जहाज हैं, टैंक्स हैं, सेना है। इस महान व्यक्ति महात्मा गांधी जी ने, जैसे हमारी बच्ची ने बोला कि बिना तलवार और बिना ढाल और अपने ही देश से पराए देशवासियों का कब्जे को किस तरह से उन्होंने बिना गोली चलाए आज़ाद करवाया, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम इतना खुश होते हुए भी असुरक्षित फील करते हैं कि हमें कमजोरियां हैं, हमारी अंदरूनी कमजोरियां हैं। आज के समय में जो गांधी जी की फिलॉसफी है, उसका रेलेवेंस इतना ज़्यादा बन जाता है कि हम सब जो ये नॉन वायलेंस का रास्ता जो अपनाया था, वो अपनाएं और इस मैसेज को हर कोने में, पूरी दुनिया में फैलाएं। देखिए, आज का दिन जो है, ये यूएनओ ने फैसला किया है कि ये इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ NSSPO ने और जो हमारे बच्चे हैं, इन्होंने इतना ब्यूटीफुल तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और इतनी अच्छे अच्छे विचार अपने गांधी फिलॉसफी और गांधी थॉट पे रखे हैं, जो कि सराहनीय योग्य हैं। ये कार्यक्रम जो है, ये 3-4 दिन का बच्चों ने बनाया है। इसमें हमारे बच्चों, जैसे मुझे पता चला है कि स्वच्छता अभियान भी है। आज तो ये एक डिबेट थी, जो कि बच्चे डिबेट नहीं थी, एक सिम्पोजियम था, जिसमें हमारे 5-7 पार्टिसिपेंट्स ने बड़े अच्छे तरीके से गांधी जी की फिलॉसफी को सामने रखा है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि ये जो हमारे बच्चे हैं, ये आगे आएँ, ये स्टेज संभाले, ये इस तरह से तैयार किए जाए ताकि कल जब ये जहाँ से जाए, लगे इनको कि कजवानी कॉलेज में हम पढ़ के आए हैं और कजवानी कॉलेज का जो माहौल था वो कितना अच्छा था। ये मैं अभी कल ही ज्वाइन किया है और मैं देख रहा हूँ कि हमारे टीचर इतने एफिशिएंटली और पंक्चुअली और रेगुलरिटी से आते हैं और काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें कभी आ रही है, वो हमारे पास बच्चे जो है वो नहीं हैं। तो आज ये बच्चे, इनको हमने घर से बुलाया जिस तरह से, और ये 25-30 बच्चे जो हैं पूरा SOP फॉलो करके आए हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये कोरोना की बीमारी से हमें निजात मिले, और ताकि हमारा जो बच्चों के साथ जो ऑफलाइन रिलेशन है, जो फिजिकल रिलेशन है, वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आके बने, ताकि
बच्चे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस से निजात पाकर ऑफलाइन में आए और हम बहुत सारी और तैयारियां करें और इस तरह के प्रोग्राम हम लगातार करें ताकि जिससे हमारे बच्चों की ग्रोथ हो और कॉलेज की डेवलपमेंट भी हो। तो अगेन मैं सबको बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने ये गांधी जयंती की सेलिब्रेशन का प्रोग्राम जो रखा है ये बहुत बढ़िया रखा है और बच्चे इतना सुंदर बोले हैं। मैं इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का कंसेप्ट नहीं डालूंगा। जो बच्चों ने यहाँ आकर स्टेज पे जो शेयर किए हैं अपने विचार ये सराहनीय हैं और सारे बच्चे मेरी तरफ से एक्सलेंट हैं। थैंक यू। तो बाकी अब मैं अपने बाकी कुछ काम हमारे कॉलेज में जो चल रहे हैं, मैं अब ये गांधी जयंती के अलावा मुझे मौका मिला है तो मैं चलो आप लोगों से शेयर करूं। हमारे बच्चे भी आए हुए हैं, टीचर्स से तो मैं मिल ही रहा हूं। तो बेटा स्टूडेंट स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट मीन कि जो आपकी सहूलियत के लिए जो कार्यक्रम होंगे, जो चीज़ें चाहिए होंगी, हम बिल्कुल कमिटेड है, मेरा स्टाफ कमिटेड है। हम आपको हर एक सुविधा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ब्राउजिंग सेंटर खोल दिया है जो मेरे पहले प्रिंसिपल सर थे जिन्होंने ये अच्छा काम किया है। मैं कोशिश करूँगा कि इसी काम को इससे भी कोशिश करूँगा थोड़ी सी और पेस में काम करूँ ताकि ये जितनी भी जो हमारा बच्चा सेमेस्टर 1 में है, 3 में, 5 में है, कम से कम जो 1 वाले हैं वो सारी जो हमारे यहाँ हमारी डेवलपमेंट होगी उसको देख के जाएँ। बिल्डिंग का काम हम जल्दी ही शुरू करवाने वाले हैं। तो साइंस स्टार्ट हो गई है तो साइंस के लिए लैब्स का काम हम शुरू करवा देंगे। तो जो आपकी सुविधा के लिए काम होगा वो हम बिल्कुल ही कमिटेड हैं, हम उसको ज़रूर करेंगे। बाकी एडमिशन का मसला है तो एडमिशन में हमारी रिस्ट्रिक्शन है, ऊपर से हमें सीट्स मिली हैं, बहुत सारी नाराज़गियाँ आ रही हैं। तो बेटा ये हमारी मजबूरी है, हम एक डेस्क पे 4 बच्चे नहीं बिठा सकते, ये हमारी मजबूरी होती है। तो बाद में हमारे बच्चे जो हैं वही हमें आकर बोलते हैं कि सर हम खड़े होकर क्लास पढ़ रहे हैं। तो कम से कम जो हमारी यूजीसी गाइडलाइंस हैं हम उसको तो फॉलो करें ताकि हम आपको अच्छी शिक्षा के लिए रोल को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक स्टूडेंट टीचर रेशियो होती है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बाकी किसी बच्चे को किसी किस्म की कोई हमारे प्रति कोई ग्रेसेस हो, जैन नॉट फॉर सेक आपकी जाना है और स्टाफ को या प्रिंसिपल को कुछ ऐसे ही बोलना है। देखिए आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो तो इसको फॉलो तो करना है ना। हमने जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनको मिटाना है, ना कि लड़ाई झगड़ों को अननेसेसरी बढ़ाना है। और किसी किस्म का देखिए यहाँ मैंने देखा बहुत सारे सभी समुदाय के बच्चे हैं यहाँ पर, तो हमने एक कमर हारमोनी भी बना के रखनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए कॉलेज कैसे ग्रो करता है। आप लोगों का सहयोग चाहिए, हमें बच्चों का सहयोग चाहिए। टीचर तो वो तैयार बैठे ही हैं, लेकिन बच्चों का हमें सहयोग जरूर चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। तो एक बार फिर मैं आप लोगों का अपने स्टाफ का भी शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। स्पेशली हमारी मैडम साहिबा हैं, बड़े एक्सपीरियंस हैं, ये प्रिंसिपल रैंक के हैं लेकिन ये नहीं जाना चाहते किसी अपनी मजबूरी की वजह से। तो ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो मैडम जी आपका और सभी स्टाफ मेंबर का ये मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा तरीके से। Thank you so much, sir. Now I request Baljinder ma'am to come upon the stage to grant the vote of thanks. खड़क बिना डार साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी चलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ हाँ वो कमाल ही तो था जिन्होंने हिंसा छोड़ अहिंसा का रास्ता अपनाया और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनवाया। हाँ हाँ वो कमाल ही तो था जिन्होंने जो सीधे साधे आम से दिखने वाला भारतीय, जिन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद करवाया। हाँ हाँ वो कमाल ही तो है जो
आज भी हम सब में जिंदा है, क्योंकि गांधी एक जाति और धर्म नहीं, गांधी एक विचार और सत्य है, और सत्य का रूप है जो कभी मरता नहीं, जो कभी मरता नहीं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, और या ऐसे कह लो सहज पके सो मीठा हो। After a long wait, at last, the Kanjwani College got most dedicated, honest, experienced principal, reputed professor of physics, has more than 33 years of active experiences. I lack words for their appreciation. Sir, हम आपका बहुत गर्व से और तहे दिल से स्वागत करते हैं और शुक्रिया करते हैं, और हमें यकीन है कि हमें अपने साए में कॉलेज को उन बुलंदियों तक पहुंचाओगे। यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जो माना जाता है, हम उस तक आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ ऐसी शांत पर्सनैलिटी का, आमला सर जी, जिन्होंने हमें हमेशा कॉलेज की बेहतरी के लिए हर नामुमकिन पलों को मुमकिन बनाया। मैं शुक्रिया करती हूँ अपने सभी इनोवेटिव प्रोफेसर्स का, जिन्होंने कॉलेज की बेहतरी के लिए हमेशा 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 हमें सहयोग दिया। मैं दिल से अपने प्यारे बच्चों को दुआएं और शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने कॉलेज के हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने टैलेंट को उभारा। मैं शुक्रिया करती हूँ प्रेस का, मीडिया का और सभी चैनल्स का, जिन्होंने हमारे जीडीसी कंजवानी की हर एक्टिविटी को कैप्चर किया और सोशल मीडिया तक पहुंचाया। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैं अंत में एक लास्ट में कहना चाहती हूँ, गलत है वो जो लोग मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलते हैं। मजबूरी नहीं, मजबूती का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत की पहचान है। महात्मा गांधी हमारे दिलों की जान है। महात्मा गांधी हमारी पहचान है। महात्मा गांधी। जय भारत, जय हिंद। Thank you, Baljinder ma'am. At last, thank you for everyone being here. Thank you so much.